सभी प्रतिभागियों को मेरा हार्टी वेलकम। Our respected resource speaker Sri Sangram Dhar, Engineer Sangram Dhar ji has joined. I welcome him. Namaskar sir. Yes, Dr. Misra, namaskar. Namaskar sir. Hearty welcome to you to our webinar, national webinar today. A hearty welcome to all our participants from all parts of the country, all corners of the country. We have with us today two internationally acclaimed resource speakers and our patron himself, Dr. Himanshu Das sir, is also an internationally acclaimed special education professional, an expert in the field in the country, he who has an experience of 3 national institutes as director, National Institute for the Intellectually Disabled at Hyderabad. He was also director in National Institute for the Empowerment of Persons with Multiple Disabilities in Chennai. At present, he is director of the oldest national institute of the country, National Institute for the Empowerment of Persons with Visual Disabilities, Dehradun. I welcome sir, he is the patron. I request Sri Himanshu Das sir, Dr. Himanshu Das sir, to kindly declare the webinar open so that we can proceed on the other details of the minutes. Dr. Himanshu Das sir, kindly to inaugurate the webinar. है नमस्कार, आप सबको प्रणाम। आज का दिन बहुत ही शुभ है। ऐसी कठिन घड़ी में जब पूरे दुनिया, पूरे देश, हर एक व्यक्ति बहुत ही परेशान है, पूरी सिस्टम परेशान है, मेडिकल शास्त्र परेशान है, ऐसी समय में जो आप लोगों ने एक बहुत ही विशेष टॉपिक के ऊपर इस वेबिनार का आयोजन किया, रोल ऑफ स्पिरिचुअलिटी, इसको मुझे लगता है 1 साल पहले से ही हम सभी संस्थाओं को हर हफ्ते इसके ऊपर हमें काम करना चाहिए था। देर आए दुरुस्त आए, देर से ही भले हो, लेकिन आज हमारे सामने बहुत ही ऑनरेबल रिसोर्स पर्संस ज्वाइन किए हैं। डॉक्टर संतोष मोहंती जी है हमारे पास संग्राम धर जी है। तो इनकी आशीर्वाद और इनकी जो भी वचन होंगे उससे मुझे लगता है हम स्पिरिचुअलिटी की तरफ आगे बढ़ पाएंगे। और मुझे लगता है भारत एक ऐसा देश है जिसका रूटिंग सदियों से, सालों से इसी के ऊपर रहा है। आपदा कब आएगी, आपदा कैसे जाएगी, आपदा से कैसे हम मानव जाति को बचाएंगे, मानव जाति आपदा से किस प्रकार से लड़ते हुए आगे सकारात्मक विचार रख के आगे बढ़ पाएंगे, इसमें मेडिकल साइंस सिस्टम के ऊपर भरोसा ना करते हुए हमारे देश हमेशा स्पिरिचुअलिटी के ऊपर ही भरोसा करते रहा। ऑर्गेनाइजिंग कमेटी की तरफ से अंबिका प्रसाद सर है हमारे पास, डॉक्टर जसमीत सिंह सर है, पूर्णिमा मैडम है, मिश्रा जी है और पीएन मिश्रा जी और श्रीनिवास रेड्डी साहब भी हमारे साथ जुड़ेंगे। मैं आप सबको बहुत बहुत शुभाशीष देता हूँ, बहुत बहुत वेलकम करता हूँ। सारे पार्टिसिपेंट्स को मैं नमन करता हूँ और मैं अनुरोध करूंगा ऑर्गेनाइजर्स से और रिसोर्स पर्सन से कार्यक्रम बहुत बढ़िया तरीके से हो। सो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू कंटिन्यू विद द प्रोग्राम। मेरा एक्चुअली कोविड वार्ड में ड्यूटी है, तो मैं क्वारंटाइन सेंटर में जाऊंगा कोविशील्ड अगर आप पहन के। तो आज के लिए मैं जुड़ नहीं पाऊंगा, लेकिन क्योंकि आप लोगों का रिकॉर्डिंग हमारी नेशनल इंस्टीट्यूट की तरफ से होंगी और हम फेसबुक लाइव भी करेंगे, इसको फेसबुक में डालेंगे, हमारा यूट्यूब वगैरह में डालेंगे, तो हम आपके साथ जुड़े रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत नमस्कार जी आपसे। Thank you so much sir. Namaskar sir. It was great to hear from our respected beloved director Dr. Himanshu Das sir, and the webinar has been formally opened now. I now introduce our respected resource speakers today and the keynote speaker. Our keynote speaker is Dr. Jasmeet Singh. Although he hails from Haryana, he has been a national figure in the field of disability in our country. He is heading the National Board of Examination
for Rehabilitation in NIEPVD, I mean National Institute for the Empowerment of Persons with Visual Disabilities, Dehradun. He is the Deputy Controller of Examinations also. In several national and international seminars, he has presented papers, made his speech. He has been quite impressive in all the aspects. I welcome Dr. Jasmeet Singh sir. Our two internationally acclaimed resource speakers today are Sri Santosh Kumar Mohanty ji, who has visited more than 5 universities across the globe to speak on spirituality. Last year he visited Virginia University, Scotland University, and some other places in USA also to speak on spirituality. He has been visiting Culture University of Bhubaneswar, Utkal University of Odisha, and Ravenshaw University of Odisha also as speaker in the field of spirituality. He is also a versatile personality. He was chairman of Odisha Tourism Development Corporation of Odisha. At present, he is also the president of Ekamra Saraswat Sangh. He has been editing a tri-monthly, very popular magazine named Sangha Sevak, which has more than 15,000 subscriptions. He has also written very famous books like A Bend in the Time Flow, and another book I know, The Midday Sun, which are very popular. He has also written a very nice book of comparison and analytical study of Indian religions with other religions of the world. And the book is under print. It's a book of 1,200 pages. It will be a treasure for all the libraries of the country and abroad also. And the other speaker who is with us today, a technocrat, a business manager, engineer Sangram Kisari Dharji. He hails from Odisha, although stationed at Gurgaon, New Delhi. He is also an internationally acclaimed speaker, visited more than some 30 or 40 countries in the world. He has been also preaching Jagannath consciousness as an activist in International Society for Jagannath Consciousness. He has been also associated with several other social organizations. Basically, for Odisha, he is a very popular figure, of course. He is the secretary of Delhi Saraswat Sangh, and Delhi Saraswat Sangh has been into a lot of charitable work, especially for the persons with disabilities also. A very versatile personality, multifarious activities he has undertaken. He is associated with Odia Samaj, Odisha Without Border, Rashtriya Pravasi Odia Parivar, Institute of Promotion of Odia Culture and Heritage, the Khushi Foundation, and International Society for Jagannath Consciousness. I know, of course, a little about him. So many other organizations he is associated with. He believes that our motherland Bharat will be the master or the Vishwa Guru of the whole world in the field of spiritual practices through its rich spiritual heritage. That is all his motto.
We are proud to have him as a resource speaker in our national webinar. Hearty welcome to Engineer Sangram Dharji. I do also welcome Madam Purnima Sharma, who is the coordinator of NBER, NIEPVD, National Board of Examinations for Rehabilitation, National Institute for the Empowerment of Persons with Visual Disabilities, Dehradun. She will be also speaking on the religious practices as she is associated with ISKCON. I welcome Madam Purnima Sharma also. We have with us also Sri K. Srinivas Reddy ji, who has authored many books in the field of special education. Along with me also, he has authored books. He hails from Hyderabad. He belongs to Training Center for the Teachers of the Visually Handicapped, a training center from Hyderabad, although an employee of National Institute for the Empowerment of Persons with Visual Disabilities, Dehradun. I welcome Reddy ji also. And now request Sri Ambika Prasad Patnaik sir, who is the Deputy Secretary of SSCPD Department, Social Security and Empowerment of Persons with Persons with Disabilities, Government of Odisha, and he is also the course coordinator of State Institute of Special Education and Research. He is also the OSD, Officer on Special Duty to the State Commissioner for Persons with Disabilities. He has been into the field for last 35 years, a long experience Sri Patnaik sir has. It is his inspiration, it is his initiation that we have been taking on our State Institute, where Engineer Sri Dhar has also visited. So I request Sri Ambika Prasad Patnaik sir to kindly formally welcome all the resource speakers and participants and make his speech to the audience. Sri Ambika Prasad Patnaik sir, please. Thank you. Welcome all of you to the national webinar on the role of spirituality in education and social life. For this session, we have got Dr. Himang Das, Director NIEPVD, who left the session for some preoccupation, though he will be physically absent, but he will be mentally present for the session. The others eminent persons, we have Dr. Jasmeer Singh, Assistant Professor in NIEPVD, Dehradun, who was all along with us for this type of webinars and a very encouraging and contributing partner for making all those programs success. It is also a great privilege for us to get the eminent personalities in the field of education and spirituality, like Sri Santosh Kumar Mahanti, an eminent personality in educational policy, internationally known for his vast knowledge on educational policies, educational systems, and existing education system and its remedial measures requirement, and a contributor within educational policy, both on the state and at the national level. And we have with us Engineer Sangram Dhar, an eminent personality and spirituality. He is also involved as an activist of International Society for Jagannath Consciousness. We expect a lot of experience from him in this session to be shared with. Besides that, we have with us Mr. Purnima Sharma, Coordinator, NBR, NIEPVD, Dehradun, and Mr. K. Srinivas Reddy, PCTH, Hyderabad. As regards the selection of the subject
of the day, it will be quite justified to say that we have rightly chosen the subject. We know perfection in life can be achieved by virtuous and righteous actions. If you analyze this, we can say we should always make morally right and justifiable things, and we should take actions that will have a high moral standards. Spirit, from the very early childhood, we know the role of spirituality in our development. A person's on attaining spiritually at some level will be able to concentrate to achieve anything, will be very justified fellow to deliver justice to the persons that they receiving him. He will be very sympathetic and concerned for others on delivery of services. So spirituality has a lot of role in our life making. It also very essential for the students to bring concentration to receive the teachings they have been taught. What we have now, because of spiritual knowledge provided to me by our teachers, for making our life successful. So, spiritual discussion on spirituality relevance needs no elaboration in detail. Each and everyone has realized in their life. So we have chosen the right subject. Now I hand over the session to Dr. Mishra to proceed. Thank you so much, sir. You have been an inspiration for all the professionals who have been working here in the field of disability in the state, and you have been also an example for all other states also in the country. A good many states have been following the activities of Odisha in the field of disability. Most of its credit goes to Sri Ambika Prasad Patnaik sir. So we are proud of him. And we express our sincere gratitude to Sri Ambika Prasad Patnaik sir, who has always provided his positive nod to work on in the field. Thank you so much, sir. I now request Dr. Jasprit Singh sir to kindly address the webinar as a keynote speaker and speak on the objectives of this series of webinars we have been conducting almost every day now. Dr. Jasprit Singh sir, please. थैंक यू वेरी मच डॉक्टर प्रेमानंद मिश्रा जी। आज के हमारे कार्यक्रम के रिसोर्स पर्सन श्री संग्रामधर जी, जो कि एक इंटरनेशनल स्पीकर है, सर आपको प्रणाम सर। आदरणीय श्री संदेश कुमार मोहंती जी, जिनका परिचय अभी डॉक्टर प्रेमानंद मिश्रा ने दिया कि, और मेरे मन में ख्याल आया कि हमने इस वेबिनार को एक नेशनल वेबिनार क्यों रखा, हमें इसको इंटरनेशनल रखना चाहिए था और इसको स्प्रेड करना चाहिए था यूट्यूब के ऊपर, या पहले से ही हमें इसको बहुत बड़ा बनाना चाहिए था, क्योंकि सर का जो एक्सपीरियंस बताया, सर हम बहुत बहुत कृतज्ञ फील कर रहे हैं कि आप हमारे साथ जुड़े और इतने महत्वपूर्ण टॉपिक पे आपने एक छोटे से राष्ट्रीय संस्थान और एक छोटे से ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन के साथ मिलकर अपना जो एक्सपीरियंस है वो शेयर करने के लिए प्रयास किया। हमारे निदेशक महोदय, जिनका आशीष वचन हमें प्राप्त होता रहता है और जो स्पेशल एजुकेशन के फील्ड में एक स्पिरिचुअलिटी को साथ लेकर मूव ऑन कर रहे हैं, क्योंकि डिसेबिलिटी फील्ड में हम सभी जानते हैं जिस डिसेबिलिटी में हम कार्य कर रहे हैं, ब्लाइंडनेस और लो विजन में, वहां पर पहले से ही स्पिरिचुअल आइकन्स बहुत सारे हैं। म्यूजिक बेस्ड हम डिसेबिलिटी मानते थे प्राचीन समय से, आधुनिक में भी हम उसके ऊपर धीरे धीरे बात करेंगे।
साइजर की टीम को लीड ऑन करने के लिए अंबिका प्रसाद जी और हम गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आज संडे होते हुए भी इनकी पूरी टीम आज लगी हुई है। नो रेस्ट इन द कोविड-19 वेव 2। सर, हम आपको नमन करते हैं हमारे इंस्टीट्यूट की तरफ से। हमारे बीच में है मैडम पूर्णिमा, जो कोऑर्डिनेटर है एनबीआर के, पूरा डेडिकेटली है। मोर देन मैडम ने अपने समय में तकरीबन अगर हम ज्यादा देखें विजुअली इम्पेयरमेंट के 20,000 से ज्यादा टीचरों को तैयार करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है विगत 7-8 वर्षों से, और क्वालिटी एजुकेशन एंड स्पेशल एजुकेशन को इम्प्रूव करने में, और एथिकली ऐसी पोस्टों के ऊपर, जिन पोस्टों के ऊपर आप मानते हैं कि बहुत सारे दबाव होते हैं, बहुत सारा इम्पैक्ट होता है, वो स्पिरिचुअलिटी है कि जिसने इस काम को करने के लिए बल दिया और लगातार मोटिवेट हो रहे हैं। मैं आप सभी का NIPVD NBR की तरफ से स्वागत करते हुए आज का जो हमारा वेबिनार है उसके ऊपर बताना चाहूंगा कि स्पिरिचुअलिटी इन एजुकेशन आखिर होता क्या है, आखिर हमें इसकी जरूरत क्या है। मैं 2-3 कोट के साथ इसको शुरू करना चाहूंगा कि हम सभी का जन्म के साथ ही स्पिरिचुअलिटी शुरू हो जाता है, जब पेरेंट्स हमें बहुत कुछ सिखाने का प्रयास करते हैं, यानी कि फ्रॉम फैमिली वी आर स्पिरिचुअल। लेटर ऑन जब हम स्कूल में जाते हैं तो पहला पड़ाव हमारी प्रेयर का आता है हमें स्पिरिचुअल बनाने में। तीसरा पड़ाव हमारा बीइंग ए प्लेयर, जब हम कोई गेम खेलते हैं तो धरती माता को छूकर हम अपने गेम को शुरू करते हैं और एंड करते हैं। और हमने देखा है कि जब भी हम कोई कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं तो कोई ना कोई डिवाइन स्पिरिचुअलिटी को अपने गले में, हाथ में, पांव में, कहीं पर भी रखकर हम उसके साथ खेलना शुरू करेंगे। बहुत सारे खिलाड़ियों को हमने देखा है, बहुत सारे साइंटिस्ट को हमने देखा है कि उनके हाथ में, पांव में या गले में बहुत कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनके बल पर वो पूरा का पूरा मुकाम हासिल करते हैं, और जिसके लिए फिर वो विजडम प्राप्त करने के बाद, जैसा ही हमारा विजडम है, हम इंटरनेशनली देख पा रहे हैं कि प्राचीन समय से लेकर अगर आज तक का हम 5,000 साल का अपना इतिहास देखें तो उसमें हमें लगेगा कि जो एजुकेशन को आज की एजुकेशन है, लेकिन एजुकेशन का प्राचीन समय में अगर हम देखें, जो ऋषि मुनियों के द्वारा एजुकेशन दी जाती थी वो लाइफ के लिए एजुकेशन दी जाती थी कि पूरी लाइफ आपने कैसा जीवन जीना है, उसका मतलब ही एजुकेशन है। आज हम नेचुरल एजुकेशन बेस्ड हो गए हैं, टोटली फॉर्मल और इनफॉर्मल एजुकेशन बेस्ड हमारी प्रैक्टिकलिटी हो गई है। लेकिन अगर हम एजुकेशन की बात करें, एजुकेशन फिनोमिना का जो तीसरा हमारा महत्वपूर्ण है वो है सुपर नेचुरल, जिसको हम स्पिरिचुअल एजुकेशन बोलते हैं। प्रत्येक बच्चा अपने आप में किसी न किसी गॉड में बिलीव करके एक विद्यालय में आता है, एक संस्थान में जाता है, कार्य प्लेस पे जाता है, विजिट पे जाता है, बाहर जाता है, भ्रमण पे जाता है, और उसको एक फेथ होता था ही विल बी रिटर्न केम बैक सेफली विद होम। घर पे अच्छा, उनके पेरेंट्स का एक बिलीव होता है कि जब भी बच्चा कहीं बाहर जाता है, दैट इज द सुपर नेचुरल स्पिरिचुअल एजुकेशन एंड बिलीव। हम देखते हैं आज की एजुकेशन हमारी मनी बेस्ड होगी, फेम बेस्ड होगी, और इवन हम नॉलेज लेने के बाद उसके ऊपर कई बार हम ये कहते हैं कि अहंकार हो गया है, लेकिन ये नहीं है। अगर हम ये पूरी एजुकेशन को अपने हार्ट से अप्लाई करते हैं और अपने दिल से और वर्ड्स के थ्रू उसको सेपरेट करने का प्रयास करते हैं ह्यूमैनिटी में, दैट इज द रियल एजुकेशन। और उसी एजुकेशन की हम बात कर रहे हैं। आज की एजुकेशन जितनी भी हम किताबों में पढ़ रहे हैं, दैट इज बेस्ड ऑन द फिजिकल ऑब्लिक अर्थ एजुकेशन, बट वी हैव टू नो अबाउट द स्पिरिचुअल एजुकेशन की हमारे अंदर आत्मा और परमात्मा की जो बात हमारे बहुत सारे संत महात्मा करते हैं, ऋषि मुनि महात्मा करते हैं। और आज के हम देखते हैं कि भारत का भक्ति काल का युग अपने आप में पूरे विश्व को दिखाता है कि भारत ने स्पिरिचुअलिटी अपने आप को कितना एम्पावर किया है। प्राचीन युग के बाद जो भक्ति काल का युग है, बहुत सारे संत महात्माओं के नाम पर नगर बने हुए हैं, बहुत सारे संत महात्माओं के नाम पर यूनिवर्सिटी बनी हुई है, बहुत सारे ऐसे संत महात्माओं हैं जिनको बहुत सारा समाज फॉलो करके आज आगे बढ़ रहा है। चाहे हम साउथ इंडिया की बात करें, नॉर्थ इंडिया की बात करें, ईस्ट की बात करें, सेंट्रल इंडिया की बात करें, ऐसे बहुत सारे नाम हमारे बीच में आते हैं जिनको हम फॉलो करते हैं। और रिसेंटली जैसे इस्कॉन जैसे एक अपने लाइफ में लीडर हैं जो जिन्होंने पूरे वर्ल्ड में हमारी भक्ति का, भारतीय भक्ति का एक विश्व लेवल पर पहुंचाने का प्रयास किया है। हम इन्हीं में बात देखते हैं कि जगन्नाथपुरी की यात्रा जो होती है उसको पूरा विश्व देखता है, और न केवल विश्व देखता है, अगर कोई उड़ीसा भ्रमण के लिए आता है तो जगन्नाथ भगवान जी के दर्शन करने जरूर पुरी में जाता है। दिस इज आवर स्पिरिचुअल कनेक्शन। इसी प्रकार से बहुत कुछ है, लेकिन एक स्टूडेंट के तौर पर, एक टीचर के तौर पर हम अगर सेफ हैं और हम अपनी जिंदगी में
60 से लेकर 80 ईयर की जिंदगी में अगर हम कुछ स्टूडेंट्स को देना चाहते हैं, अपनी फैमिली को देना चाहते हैं, दैट इज वी हैव बी स्पिरिचुअल। और वो यही है कि स्पिरिचुअल की पहली शुरुआत होती है कि हमें डर लगना चाहिए भगवान से कि हमारे कर्म ऐसे होने चाहिए जिससे मानवता का हित हो। इन्हीं शब्दों के साथ आज हम अपने रिसोर्स स्पीकर से सुनने के बाद अपने जीवन में उनकी अच्छी बातों को उतारने का प्रयास करेंगे। न केवल उतारेंगे अपितु मैं इस मंच के माध्यम से जितने हमारे साथ जुड़े हुए कोऑर्डिनेटर हैं, हमारे फैकल्टी मेंबर हैं, उनसे अनुरोध करेंगे कि इसके ऊपर आप अपने लेवल पर अपने स्टूडेंट के साथ, उनके पेरेंट्स के साथ छोटे छोटे वेबिनार की सीरीज जरूर कराइए। क्यों आज हम भूल गए हैं कि जो कुछ भी आज हम हैं, इतना बड़ा कोविड-19 वेव चल रहा है, फिर भी हम सब अपने आप सेफ हैं, बिना मेडिसिन हम देख रहे हैं कि ऑक्सीजन नहीं है। कहीं ना कहीं जो व्यक्ति स्पिरिचुअल है ही फील हिमसेल्फ सेफ एट एनी प्लेस। और भारत का स्पिरिचुअल तो ऐसा स्पिरिचुअल रहा है जिसको हमेशा लोगों ने फॉलो किया है कि हमारे ऋषि मुनि और जितने भी भगवान के अवतार हुए हैं, उन्होंने अपना देह त्याग अपनी इच्छा से किया है, वो था स्पिरिचुअल विजडम की वजह से। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज हमारे रिसोर्स पर्सन का बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप हमारे साथ इसी प्रकार से आशीर्वाद देते रहेंगे और हमारे साथ जुड़े रहेंगे। बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you so much, sir. You have been also a spirit of motivation for all of us in the country. We have been arranging a series of webinars under your leadership, sir, under the banner of NBER and IPPD. You have been motivating us, so we are thankful to you. I now come to give some little more information about Sri Santosh Kumar Mahanti ji, who is a proud son of Odisha, son of late Satyapriya Mahanti ji, who was Speaker of Odisha Legislative Assembly, who was also Education Minister and Law Minister of Odisha. Sri Satyapriya Mahanti represented Odisha in the Speakers Congress in the United Nations. But Sri Santosh Kumar Mahanti ji surmounted all the parameters, transcended all the heights Sri Satyapriya Mahanti ji had in his life. As I have already spoken, he visited Virginia University, Scotland University, some other places in the USA, and some other countries also as a speaker in spirituality. He has been visiting also the Culture University of Odisha, Utkal University of Odisha, and Ravenshaw University as a speaker. A multifarious activity-based personality, Sri Santosh Kumar Mahanti ji. I pay my sincere respect, regards, and welcome him to our national webinar. And I now request earnestly to Sri Santosh Kumar Mahanti ji to kindly appear and make his speech available to the webinar. Good morning, everybody. Thank you, Guna bhai, for your counseling. Mr. Patnaik ji, Mr. Singh ji, आभार प्रकट करना चाहूंगा प्रेमानंद मिश्रा जी से, जिन्होंने आज ये मौका दिया है आप लोगों से मिलने का, थोड़ी सी बातें करने का। उन्होंने बड़े बड़े बात हम लोगों के बारे में सुनाए, आपको उस पर मत जाइएगा। वो बहुत चाहते हैं, हमको प्यार करते हैं, इसलिए ऐसे बोल रहे हैं। हम तो बस नाचीज है। तो ये जो टॉपिक रखे आपने, all the members, all the dignitaries, all the teachers, those who have taken a vow to devote their time and energy on academic institutions, teaching and making the children, the disabled persons, able to lead a life of normalcy. They were thanks to them. अब आपने जो टॉपिक रखे हैं स्पिरिचुअलिज्म और एजुकेशन में,
जैसा कि शमशेर जी ने बताया था आपको कि पहले मुनि ऋषियों के घर में ही, उनके आश्रम में ही स्कूल चलता था और उन्होंने सच्ची मायने पर इंसान बनाते थे। अब हम लोग क्या बनाते हैं? हम लोग मनी स्पिनिंग रोबोट बनाते हैं, एक्सपर्ट बनाते हैं, मगर इंसान नहीं बनाते। तो संग्रामधर जी साहब हमारे छोटे भाई है, बड़े नॉलेजेबल पर्सन है, बड़े रिसोर्सफुल पर्सन है, उन्हें पता है हमारे बारे में जो कुछ। तो हम ये कहना चाहेंगे, पहले ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी से तो योगानंद जी ये संतों को देखकर, सन्यासियों को देखकर प्रणाम नहीं करते थे। वो सोचते थे कि घर में खाना नहीं मिल रहा है इसलिए ये सन्यास बन ले लिए, ऐसा मानना था उनका। न जाने ऋषिकेश में एक दिन एक बहुत ही बुजुर्ग सन्यासी को देखकर उनके मन में आया कि इनको प्रणाम करें, और उनके पास गए, प्रणाम किए। उन्होंने मुस्कुराया, बोला बच्चा बैठो, यहाँ बैठो। कौन हो तुम? कहाँ से आए हो? कहाँ जाओगे तुम? तो उन्होंने कहा कि मैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में से आया हूँ, मेरा नाम फलाना है, अब वापस वहीं जाना है। तो उन संतों ने फिर मुस्कुराया, बोला मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ कौन हो तुम, कहाँ से आए हो, जाना कहाँ है तुम्हें? इसका मतलब ये है कि सारे शरीर में ये आंख है, ये मुंह है, ये कान है, ये हाथ, ये पैर है, तो इतने बड़े शरीर में तुम कहाँ हो? तो ये शरीर के अलावा तुम कुछ और हो, क्या हो तुम? कहाँ से आए हो? मेरा कहने का मतलब ये था, सन्यासी ने उनको कहा, संतों ने, कि पैदा होने से पहले थे कहाँ तुम? कहाँ से आए हो? जाना कहाँ है तुम्हें? अब अंत समय आए और मौत के बाद तुम जाओगे कहाँ? तो योगानंद जी ने बोला, तब सरस्वती नहीं बने थे, वो लेक्चरर थे। तो उन्होंने बोला कि माफ करना, इन सब बातों को मैंने कभी सोचा ही नहीं, मुझे पता नहीं। तो संतों ने फिर मुस्कुराया और बोला, उसके कंधे पे हाथ रख के, कि इतने से बात खुद के बारे में पता नहीं तो बच्चों को क्या पढ़ा रहे हो? तो बच्चों को पढ़ाने के लिए इन सारे बातों से आपको नॉलेजेबल होना चाहिए, तो बड़ा ही मुश्किल बात है। आप थोड़ी ना संत बनेंगे टीचर बनने के लिए घर बार छोड़कर, यह संभव नहीं है। मगर यह संभव जरूर है कि आप स्पिरिचुअलिज्म को अपनाए, भारत के जो हेरिटेज है, रिच हेरिटेज, उसके बारे में जरा सा समय निकाल कर सोचा करें। जिन मुनि ऋषियों के बारे में आज चर्चा हो रही है, उनके नाम तो कम से कम पता करें, और उनको जो उन्होंने जो दे रखे हैं सारे मानव जात के लिए, उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करें, क्योंकि असल में हमें उनके तो बराबर है। We are inherited the rich spiritual property। और बेसिक तो यह है कि हम सब स्पिरिचुअल पर्सन्स हैं, बट वी हैव बीन deluded to think that we are worldly persons। इस बात पे रोना है। अंदर तो मोती हीरे का भंडार लगा हुआ है, अगर हमें पता ही नहीं चलता है कि हम किस पर बैठे हैं, ये बड़े दुख की बात है। तो जैसे मैंने कहा कि स्पिरिचुअलिज्म और स्कूल्स थोड़ा सा अलग लगता है। अब ये बच्चों को क्यों स्पिरिचुअलिज्म सिखाए, इनको क्यों भटकाए राह से? बात ये नहीं है। हम सब सोचते हैं कि स्पिरिचुअलिज्म के बाद घर उड़ छोड़ना होगा, दाढ़ी उड़ी कटना नहीं,
सैफरॉन पहनना होगा। नहीं भैया, ये तो स्पिरिचुअलिज्म का पार्ट है। असल में स्पिरिचुअलिज्म ये है, अगर किसी का दुख देखकर आपकी आंखों में आंसू आ गया तो हम मानेंगे कि आप नॉलेजेबल पर्सन है और आप स्पिरिचुअल पर्सन है। अब किताबें पढ़कर बातें करना तो कोई भी एक्टर कर सकता है सिनेमा में, छोटे स्क्रीन हो या बड़े स्क्रीन, मगर अपने दिल के अंदर के झांक कर देखना बड़ा ही कठिन काम है। तो इसके बारे में और एक छोटा सा बात आपसे कहूं कि सेवा क्या होता है। एक रिटायर्ड पर्सन में, ये अमेरिका के बात बोल रहे हैं, जहां हम शार्लोट में, नॉर्थ कैरोलिना में उन लोगों को सुनाया था। आपसे निवेदन कर रहा हूं, आज मौका ने प्रेमानंद जी ने दिया है। तो एक बुजुर्ग साहब जो कि रिटायर हो चुके थे, उनका ये शौक था कि मेडिकल दौरा करे, अगर किसी को कुछ चाहिए तो अपने जेब से खर्चा करे, उसे दिलवाए, मुहैया करवाए, ये उनका था काम। ऐसा करते करते एक छोटे बच्चे के पास जा पहुंचे। बड़ा दुखी था वो, लेटा हुआ था बेड पर, और इस बच्चे को इनक्योरेबल डिजीज था जो कि क्योर नहीं होना था। और उन्होंने जब पूछा डॉक्टर से, डॉक्टर साहब, डॉक्टर अंकल, मैं कब घर जाऊंगा, कब अपने दोस्तों के साथ फुटबॉल खेलूंगा, कब मां को मिलूंगा। डॉक्टर तो हड़बड़ा गया, सच कहूं या झूठ। तूने एक तरीका निकाला। उन्होंने एक पेड़ को दिखाया जो कि उसके खिड़की के पास हुआ था। बोला कि देखो बेटे, तुम जरूर ठीक हो जाओगे, मगर इतना याद रखना, इस पेड़ में जब फ्लावर्स आएंगे, फूल खिलेंगे, तब तुम ठीक हो जाओगे। क्योंकि डॉक्टर को पता था अगस्त मास के महीने की बात है, वो जनवरी फरवरी में फूल आता है, उतने दिन तक ये बच्चा नहीं रहेगा। तो ये जो बुजुर्ग मेडिकल दौरा करने का शौक रखते हैं, वो बच्चे के पास गए तो बच्चा ने मुस्कुरा कर कहा कि आज एक खुशखबरी मैं आपको सुनाने वाला हूं। उन्होंने पूछा कि क्या खुशखबरी है, सुनाओ तो सही। उन्होंने कहा देखिए ना, आज डॉक्टर ने मुझे कहा कि मैं ठीक हो जाऊंगा। तो बुजुर्ग साहब ने ये मन ही सोचा है, क्यों झूठ बोला बच्चे को। फिर बच्चा ने कहा कि देखिए, ये खिड़की पर ये जो पेड़ है ना, इस पेड़ पर जब फूल आएगा तब मैं ठीक हो जाऊंगा। तो बुजुर्ग को, वो रिटायर्ड पर्सन को समझ में आ गया कि डॉक्टर ने ऐसा क्यों कहा। ये बोला कि पर ये सब छिपा के रख के उसने बच्चे को कहा कि अरे भाई चलो ठीक है, फूल तो आएगा ही जरूर, अब तुम ठीक हो जाओगे जरूर। इतने कहने के बाद वो चला गया वहां से। 15 दिन तक नहीं आया मेडिकल दौरा करने के लिए। सब तो सोच में पड़ गए, तो रोज आने वाले आदमी थे, आज कहाँ चले गए, न जाने कहाँ चले गए। 15-20 दिन के बाद उन्होंने आया, सुबह सुबह बच्चे को बोला, देखो बेटा, अब मैं खिड़की खोल रहा हूं, इस पेड़ पे फूल आ गया है। उन्होंने खिड़की खोला, बच्चा ने देखा कि पेड़ पर फूल ही फूल है। वो तो एकदम रोने लगा, हंसने लगा, बोलना कि आज तो मैं ठीक हो जाऊंगा। आप लोगों को याद होगा कि फेथ हीलिंग होता है, आदिवासी लोग, ट्राइबल लोग जिसमें अच्छे होते हैं, वो दवाई थोड़ी ना लेते हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता इस बच्चे का शरीर अच्छा होता गया। मगर वो बुजुर्ग जो विजिट करते थे वो नहीं आए। उस दिन के बाद बच्चा ने ठीक हो गया। जब उनको पेरेंट्स को बोला कि मुझे उनसे मिलना है जिन्होंने मुझे पहले फूल दिखाए थे, तो सब मिलकर उनका जो ठिकाना था वहां गए। तो एक पड़ोसी ने बाहर आया, बोला कि किसे ढूंढ रहे हैं आप, ये घर तो उन्होंने कब का बेच दिया है, तो फिर रहते कहाँ है।
न पता नहीं कहाँ रहते हैं। आप जरा फलाना चर्च से पूछिए, वो चर्च में जाते थे, वहां थोड़ा पूछिए। तो उन लोगों ने वो चर्च को गया तो फादर ने बाहर आया, बिशप ने बोला, तो आर यू दैट चाइल्ड हु आर सफरिंग फ्रॉम ल्यूकेमिया? बच्चा ने बोला हाँ मैं ही हूं ना। ओ साहब, जिसके लिए आप आए हैं मिलने के लिए, वो तो कब से गुजर गए हैं, 2-3 दिन हो गया गुजर गए हैं। वो यहीं रहते थे, अपने घर बार गाड़ी हुई सब बेच दिया है उन्होंने, मगर एक खत छोड़ गया है आपके लिए, बच्चे के लिए। तो खत में ये लिखा था, बेटे मुझे मालूम है तुम जरूर ठीक हो जाओगे, मगर दवाई से नहीं, विश्वास पर ठीक हो जाओगे। और मैं नेशनल लाइब्रेरी जाकर ये तैयार किया कि फूल कहाँ मिलता होगा इस सीजन में, इस महीने में। तो मैंने सुना कि अटलांटिका में मिलता होगा। तो मैंने अपने जमीन जायदाद, घर गाड़ी सब बेच दिया, क्योंकि मेरे पास इतना पैसा नहीं थे। मैं अंटार्कटिका गया, वहां से फूल तोड़कर उनको आइस बक्स में रखकर यहाँ लाया, और पेड़ में जो फूल तुमने देखा है वो खिला नहीं है, मैंने बांध रखा था। और पता नहीं जब तुम ठीक होकर आओगे मैं रहूं या ना रहूं, मगर इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। मुझे तो जाना ही है, एक दिन कल हो या आज, क्या फर्क पड़ता है। मगर इतनी सी बात मेरा याद रखना, खुद के लिए मरना कायर की बात, मौत है। दूसरों के लिए मरना शेर की मरने के बराबर है। तो आप दूसरों के लिए अगर जीवन निछावर कर दोगे, तब तुम्हारा जीवन धन्य हो जाएगा। इस बच्चे पर इसका बहुत ही प्रभाव हुआ। तो देखिए, स्पिरिचुअलिज्म का मतलब कोई ध्यान ऊल और गैरिक बसन नहीं है, वस्त्र नहीं है। ये असल में एक चिंतन है, एक जीवन शैली है, एक सोच है, एक विचार है। आप स्पिरिचुअलिज्म को इन किताबों में मत रखिए, तो किताबों से निकालिए और दिल में भर लीजिए, तब आपको पता चलेगा कि स्पिरिचुअलिज्म होता क्या। स्वामी निगमानंद जी ने कहा है कि देखो भगवान है कि नहीं, ये तो डिबेट की बात है, मगर तुम हो इसमें जरा सी भी शक नहीं है। अगर तुम हो तो तुम हो क्या हो तुम, और तुम्हें किस तरह से जिंदगी असर करना चाहिए, इसके बारे में थोड़ा सा सोचो। भगवान की बात छोड़ दो, बाद में बात करेंगे भगवान के बारे में, पहले खुद के बारे में तो सोचो। अब देखिए, हम मनी स्पिनिंग मशीन बनाते हैं, अमेरिका भेजते हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए, यूके भेजते हैं, ऑस्ट्रेलिया भेजते हैं, फ्रांस भेजते हैं। तो वहां से आते हैं तो लोग पूछते हैं कितना सैलरी मिल रहा है इनको महीने में। कोई ये नहीं पूछता कि सुबह उठकर ये पिता माता के पैर छूकर प्रणाम करता है कि नहीं। सभी पूछते हैं, जैसे क्राइटेरिया बन गया है मनी अर्निंग करना। चलो ठीक है, मान लेते हैं, सख्त जरूरत है मनी अर्निंग करने के लिए। काफी मनी था रघुनाथ महापात्रा जी के पास, अब वो नहीं रहे, पेंडेमिक में चले गए। वो राज्यसभा मेंबर थे उड़ीसा से, पार्लियामेंट उनको बचा नहीं पाया, डॉक्टर उनको बचा नहीं पाया, उनका एक्सपर्टाइज उनको बचा नहीं पाया। और उनके बाद उनके 2 बच्चे भी बड़े होनहार थे, वो भी गुजर गए। बोलिए पैसा किस काम का है, पैसा तो रह गया अकाउंट में, अकाउंट होल्डर चला गया। ये पैसा कभी भी आपका क्राइटेरिया नहीं बन सकता है सक्सेस का। जीवन का लक्ष्य, ऑब्जेक्टिव, यू हैव टू डिसाइड अबाउट द ऑब्जेक्टिव ऑफ लाइफ। धर भाई जी, हमने
पूछा, जब गए थे अमेरिका तो उनसे पूछा कि यहाँ तो सब सिक्योर है, आपके लाइफ इंश्योरेंस, आपका गाड़ी का इंश्योरेंस है, घर का इंश्योरेंस है, आपका पेंशन का भी, आपका एवरीथिंग इज सिक्योर. And I have visited the mall. Wow, everything is available there, beginning from the needle up to Scotch bottle. But I didn't find a place where peace is sold, where peace of mind is sold, where humanity is being taught about. तो मैंने उनसे कहा कि हमने जो देखा, हमारे समझ में ये आया कि सबसे बड़ी कीमती चीज यूरेनियम थोरियम नहीं है अमेरिका में, आंखों के आंसू है. 2 बूंद आंसू का कीमत बहुत बहुत ज्यादा है यहाँ, क्योंकि कोई किसी को देने को चाहता ही नहीं है. 2 बूंद आंसू का इतना कीमत है कि थोरियम, यूरेनियम, प्लूटोनियम उसके सामने फीका पड़ जाती है. असल में ये 2 बूंद आंसू भारत में मिलता है. अत्रफ्यूजली कहीं भी आप जाओ, किसी से भी कहो कि भैया आज हम खाना नहीं खाए, वो अपना खाना दे देगा आपको. अब यहाँ बैठकर समुद्र के किनारे एक मछुआरे ने बैठा है, तो एक जापानीज ने आया, बोला कि भैया देखो, क्यों ये दोपहर को दिन में आप बैठ रहे हो, यहाँ सो गए हो. अब तो फिर क्या करना था? नारे बोट है, बोट को आप ट्रलर बनाओ, ट्रलर को शिप बनाओ, फिर शिप बनाकर 2-4 शिप ओशन में रखो, तुम मालिक बनकर घर पर बैठो, कहीं जाने उने का नहीं, आराम से सोते रहो. तो उन्होंने कहा यही तो कर रहे हैं हम, अभी यही तो कर रहे हैं हम तो सो रहे हैं. इतने सारे झमेला का बाद क्यों सोना है, अभी से सो जाओ. तो देखिए, इंसान सिर्फ खाने पीने पर परिवार को लेकर जिंदा नहीं रहता, जिंदा रहता है कोई असूलों पर. अगर आपकी जिंदगी में कोई असूल ना हो, आप किसी को देने के लिए आपके आंखों में आंसू ना हो, तो फिर आप भिखारी बन गए. पैसा कितना क्यों ना रहे अकाउंट में, क्या फर्क पड़ता है? क्या फर्क पड़ता है? देने के लिए आपके पास है ही नहीं कुछ. जैसे श्री राधा रानी से, गोपियों से उद्धव ने कहा, कन्हैया तो यहीं पर था, आप चाहे कुछ भी मांग लेते उससे, वो दे देता आपको. तो उन्होंने मुस्कुराया, क्या उद्धव जी, उसका पास है ही क्या, वो देगा? हम तो प्यार चाहते हैं, प्यार थोड़ी ना उसका पास प्यार है. जो हमारे पास है वो क्या हमको देगा, हम उसी को देंगे. इसलिए भगवान को प्यार करना चाहिए. मगर हम ये भूल जाते हैं कि भगवान हमको कितना प्यार करते हैं. जरा इसके बारे में भी सोचा किया करो कि भैया हमको तो भक्ति पर जाना है, हमको ये करना है, वो करना है, फलाना करना है. मगर भगवान हमारे लिए क्या करता है? एक दिन गजपति महाराज जो है यहाँ पुरी के रथ यात्रा के बारे में सिंह साहब ने जिक्र कर रहे थे अभी, वो वहां चंडाल का सेवा लिए हैं. क्या सेवा लिए हैं? झाड़ू लगाने का सेवा लिए हैं. महाराजा पुरी, यही है असूल. दिस इज आइडियालिज्म. तो गजपति ने उनके भाषण के दरमियान ये कहा कि देखिए, कोई हमारा डोर खोल दिया गाड़ी का, तो हम अंदर बैठकर बोलते हैं थैंक यू. कोई एक गिलास पानी हमको दे दिया, हम उसे थैंक यू कहते हैं. मगर जिसी ने आंख दिया, हाथ दिया, पैर दिया, जिंदगी भर हम कभी उसे थैंक यू नहीं कहते हैं. तो कम से कम उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए या नहीं? आप लोग बताइए. इन्होंने ये सारे सामान हमको दे रखे हैं, उनका भी कभी कभार शुक्रिया अदा करना चाहिए. और बच्चों के बारे में
आप जो कह रहे हैं कि स्पिरिचुअलिज्म और बच्चे, यार बच्चों का उम्र तो होने दो, बाद में उसको स्पिरिचुअलिज्म सिखाओगे। भैया स्पिरिचुअलिज्म का कोई उम्र नहीं है। कोई वंश, ऊंची वंश में जन्म होना भी नहीं चाहिए। आपका विद्या भी नहीं चाहिए, आपको धन भी नहीं चाहिए, उम्र भी नहीं चाहिए। कैसे बताइए? ध्रुव और प्रहलाद को कितना उम्र हुआ था जब वो भगवान का दर्शन किए, उनके गोद में बैठ गए? बोलिए सुदामा का क्या धन था? उन्होंने कन्हैया के साथ इतने सारे दिन गुजारे, बिन मांगे ही उसे सोने का महल मिल गया। बोलिए वंश क्या था विदुर का? वो तो नदी किनारे मिले थे, उन्हें ले आया। और क्या विद्या थी पैगंबर मोहम्मद का, रामकृष्ण परमहंस जी का? उन्होंने अक्षर तक नहीं सीखे थे, फिर भी उन्होंने दिशा दिखाए सारे संसार के मानव जात को। ये कैसा मुमकिन हुआ? तो स्पिरिचुअलिज्म संस्कृत श्लोक में नहीं, दिमाग की बात नहीं, ये दिल की बात है। आप अगर दिल साफ रखे तब मानो कि आप स्पिरिचुअल पर्सन बन गए। आप कोई किताब पढ़े या ना पढ़े, हम लोगों को तो पढ़ना पड़ता है, उपनिषद से लेकर न जाने क्या क्या किताब, क्योंकि बोलना जो है आपको सामने। मगर जो बनना चाहता है स्पिरिचुअल पर्सन, उसे कोई भी किताब की जरूरत है, बस सोच विचार की जरूरत है, एक बदलाव की जरूरत है, संस्कार की जरूरत है। अगर वो मिल गया तो बन गया अपना काम। और बच्चों को जैसे अमृतसर ने समझाया था नोबेल laureate, कि भारत के एजुकेशन सिस्टम ऐसा है कि हायर एजुकेशन में सरकार और कॉर्पोरेट हाउस बहुत ही पैसा खर्चा करते हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज हो, एमबीबीएस हो, वगैरह वगैरह। प्रिलिमिनरी प्राइमरी स्कूल में कोई खर्चा नहीं होता। अरे इसको बढ़ावा दो, पहले से ही बच्चों को बोलो कि कहाँ चलना है, कहाँ मंजिल कहाँ है तुम्हारे, अच्छे इंसान बनो। अगर आप अच्छे इंसान बन जाओगे तो आपकी जिंदगी में कोई कमी नहीं रहेगा, ये हम दावे के साथ कह सकते हैं। अच्छे इंसान बनने के लिए स्पिरिचुअलिज्म के सिवा और कोई रास्ता ही नहीं है। देखिए पहले जो ब्राह्मण लोग थे, संग्रामधर जी ब्राह्मण है, उनको पता होगा, जब वो घर से बाहर निकलते थे, जो कपड़ा लेकर निकलते थे पहनकर, उसे वहीं रखते थे बरंडा में, रिटर्न आने का बाद वो घर का अंदर नहीं लेते थे। स्नान करते थे, फिर बाद में घर के अंदर जाते थे। यही तो अभी कोरोना आपको सिखाया है। उस जमाने में जिसे हम बूढ़े कहते थे, आज कहते हैं कि अरे वो गुजरे हुए जमाने का बात छोड़ो, अब इस जमाने का बात करो। मगर उस जमाने में वो लोग जो करते थे, आज आप लोग उसी को कर रहे हैं। अगर जो नहीं कर रहा है, अरे भैया वो तो मर रहा है। हिंदुइज्म और सनातन धर्म 1000 साल जनरेशन वाइज रिसर्च का नतीजा है। ये कोई किताब में लिखी हुई कहानी थोड़ी ना है। रिसर्च ओरिएंटेड रिजल्ट ही हिंदुइज्म है। इस पर आपको विश्वास करना चाहिए। देखिए विश्वास में क्या होता है, शायद मैं आपके ज्यादा वक्त ले रहा हूं, मुझे माफ कीजिएगा, मगर ये मौका दोबारा आए या ना आए मैं गंवाना नहीं चाहता हूं आप लोगों के साथ बात करने का। एक छोटी सी लड़की गांव में रहती थी, मेला लगा हुआ था नजदीक, गांव के नजदीक, तो सभी जाते थे। ये बड़े गरीब गरीब घराने की लड़की थी, छोटी सी लड़की, 6-7 साल की उम्र की होगी।
तो उसने माँ ने उसको 2 रुपया दिया, सिर्फ 2 रुपया, बोला कि कुछ खा लेना। और जो लड़की गई मेले में सबके साथ, सभी खाने लगे, खरीदने लगे, इसका पास तो 2 ही रुपया है, क्या खाएगी। उसने कुछ खाया ही नहीं। तो जो साथ में थे वो बोले खा लेना, कुछ खा ले, 2 रुपया तो है ही तेरे पास, माँ ने दिया है, खा लेना। नहीं, मुझे सामान खरीदना है। अरे कैसा वाला सामान खरीदना है 2 रुपये में? चांदी खरीदोगे या सोना? बोला कहीं नहीं, मैं हमारे घर में जो पूजन होती है ना देवी का, उसके नाक के लिए एक लेना है लौंग। सब हंसने लगे, बोले पत्थर की मूर्त है तेरे देवी माँ, और उसके नाक में छेद भी नहीं है, तुम कैसे छेद करोगे, उसे पहनाओगे? नहीं नहीं, मुझे तो लेना ही है, मैंने तो ये तैयार करके आया हूँ कि उसके लिए लेना है, मुझे मेरे लिए कुछ नहीं लेना है, मुझे कुछ नहीं खाना है। तो 2 रुपए से उन्होंने इमिटेशन का एक रिंग खरीदा नाक में पहनने वाला, और घर को गया बगैर हाथ पैर धोए ही देवी माँ के मंदिर में घुस गया। बोला माँ देख मैं तेरे लिए क्या लाई हूं, जरा मुंह तो घुमा, नाक तो दिखा तेरे। और पत्थर में मूर्त का मुंह घूम गया और नाक में छेदा नजर आया। उन्होंने पहना दिया उसको लौंग और नाचने लगा उसके सामने कि मैं माँ तू कितने सुंदर नजर आ रही है आज, बड़े ही सुंदर नजर आ रहे, इसे पहनकर। ये स्पिरिचुअलिज्म है, ये विश्वास है। तो भैया कहने के लिए तो बहुत कुछ बाकी है, वक्त तो गुजर रहा है, वक्त की पाबंदी है हम पर। तो मिश्रा जी कहेंगे कि आपने सारे वक्त यूं ही गुजार दिया। बस जाते जाते इतनी सी दरखास्त करूंगा आपसे, जरा सा कुछ करो ऐसे मन जरा साफ रहे, सच्चाई के रास्ते पर चले और मंजिल तक सच्चाई का साथ दे। तो बच्चे जब प्रेयर करते हैं कहते हैं इतना तो करना। स्वामी जब कहते हैं हम लोग के प्राण तन से निकले, मगर बच्चे क्या कहते हैं कि मन के विश्वास कमजोर होना, हम चले उस राह पे जिस राह पे भूल से भी कोई भूल होना। तो इतना प्रार्थना कीजिए कि भगवान कुछ दे या न दे, आपने दिया हुआ सब कुछ मेरे पास है, बस एक कमी है कि विश्वास दे दे, भक्ति दे दे। वो विश्वास और भक्ति में तेरे वाले चीज किसी और को नहीं देने वाला हूं, मैं तो तुझी को दूंगा। इतना शक्ति हमें दाना दाता के मन के विश्वास कमजोर होना, हम चले उस राह पे जिस राह पे भूल से भी कोई भूल होना। तो भाइयों, हमसे कोई गलती हो गया है तो गुस्ताखी माफ कीजिएगा। दोबारा अगर मिलेंगे आपसे प्रेमानंद जी के, मिश्रा जी के कृपया अगर मिलाएंगे तो वेद वेदांत की बात करेंगे। आज बस इतना ही, और हमें पूरा उम्मीद है पुना भाई जो वाणी सरस्वती मैया की कृपा से मुंह से निकलती है तो म्यान से छूटा हुआ तलवार और तीर वापस नहीं आता, वो कुछ ना कुछ काम तो जरूर करेगा। इतना ही हमें रिवॉर्ड मिल जाएगा। Thank you everybody. Thank you very much. Sorry to encroach upon your valuable time. See you again. Thank you all. Thank you so much, sir. We have no words for your kind contribution. Only we offer our sincere pranam to you, sir. And we expect कि जितना भी हम सुने इतना ही कम होता जा रहा है। मतलब मेरा तो हिंदी तो पुअर है, फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि हम जितना भी सुनते हैं उतना भी हमारा मन करता है कि हम सुने और सुने और सुने। लेकिन योर स्पीच हैज बीन सो वेरी इम्प्रेसिव सर, इट हैज टच्ड ऑल द हार्ट्स, सो आई सिंसियरली पे रिस्पेक्ट टू यू सर, एंड दिस मच कैन बी आवर ग्रेटिट्यूड। थैंक यू सो मच सर। Another impressive internationally acclaimed speaker is also awaited now. Being a technocrat, being a business manager, presently posted as the president of Proton Facility
Solutions Private Limited of APS Group of Companies, Gurgaon. Engineer Sangram Kesharidhar ji is an MTech in Electrical Engineering, MBA also. He has all been invited here only to show that religions are not the blind beliefs. As Sri Santosh Kumar Mohanty Sarji said, religion is all there from our birth itself. कोई माने या ना माने, he somehow or other has to admit that God is there, which has to be thankfully acknowledged all the while. So to make his speech, President of Proton Facility Solutions Private Limited of APS Group, Engineer Sangram Kesharidhar ji is sincerely now requested to make his address to this webinar. Engineer Sangram Kesharidhar ji. जय जगन्नाथ, वंदे उत्कल जननी। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। भगवान से यही प्रार्थना है, सबका भला हो, सारे कैसे निरोग में जीवन यापन करें, उसके लिए व्यवस्था करें, सबका मंगल हो। आज के दिन में हम सारे अपने घर में बंधे हुए हैं और मैं आज स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेशल एजुकेशन एंड रिसर्च विच इज इन कोलैबोरेशन विथ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद विजुअल डिसेबिलिटी, इन्होंने जो ऐसा एक कदम रखा है ताकि हम लोग घर पे बैठे बैठे भी कैसे समाज का उन्नति कर सकें, समाज में कुछ अपनी योगदान दे सकें, उसके लिए उनका ये जो प्रचेष्टा है, उसके लिए मैं उनको तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, साधुवाद देता हूं। इनके जो मुखिया है डॉक्टर हिमांशु दास, वो उनको भी हम लोग धन्यवाद देते हैं। डॉक्टर जसमीर सिंह जो अपना वक्तव्य रखे हुए हैं, उनको भी मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। श्री अंबिका प्रसाद पटनायक जी, मैं उनको देख रहा हूं, बड़े गौर से वो सुनते हैं, हमसे बहुत सीनियर है हर दिशा में, बट जिस हिसाब से वो ये कार्यक्रम के पीछे उनकी जो मार्गदर्शन है, उनकी जो उपस्थिति है, उसी से ही जाहिर होता है। मैं उनको भी धन्यवाद देता हूं। पूर्णिमा जी को हम सुनेंगे, जो कि बहुत सारे टीचरों का भी टीचर है, हमने यही सुना उनके बारे में। और पीएन मिश्रा जी का तो क्या कहना है, उनका नाम ही प्रेमानंद है, वो तो प्रेम में आनंद में डूबे रहते हैं। और श्रीनिवास रेड्डी जी जो हमेशा रेडी रहते हैं हर काम के लिए, उनको भी मैं धन्यवाद देता हूं कि हमारे जैसे अनपढ़ गवार को आपने इस बुद्धिजीवी के मंच में बुलाए हैं। इससे ज्यादा हम आपके लिए कुछ शब्द नहीं रख सकते हैं। आज मोहिनी एकादशी है, जैसे तिथि भी देखिए कैसा तिथि है। एकादशी एक हमारी सनातन, जरा सब म्यूट करिए, सुनील चांद म्यूट करिए, थैंक यू। तो ये जो मोहिनी एकादशी है, एकादशी व्रत जो है उपवास है। उपवास का मतलब, उप का मतलब समीप, वास का मतलब रहना, पास में रहना। आज का दिन भगवान की तरफ से यही देन है कि हम उनके पास रहें। और आज के दिन में ये जो टॉपिक हमने चुना है, रोल ऑफ स्पिरिचुअलिटी इन एजुकेशन एंड सोसाइटी, इससे अच्छा कोई टॉपिक हो ही नहीं सकता। इसलिए मैं भगवान जी से भी प्रार्थना करता हूँ कि में ये सुनील भाई, हाँ थैंक यू, तो उनको भी मैं प्रार्थना करता हूं कि एकादशी में हम सबको आशीर्वाद करें। आपकी ये जो संस्था है, ये जो डिसेबिलिटी और पर्टिकुलरली विजन डिसेबिलिटी के ऊपर
है और आप कार्यरत है, आप रिसर्च कर रहे हैं। मैं बिरंची नारायण साहू जी को देखता हूं, मुझे लगता है शायद ये पूरे कार्यक्रम का संचालन, टेक्निकल संचालन शायद वही करते हैं। उनके पीछे आपकी इंस्टीट्यूट का बैनर है और वो बिल्कुल हेडफोन लगा के बड़े सुंदर दिखते हैं। बिरंची नारायण जी, आपकी जो अपीयरेंस है यही से पता लगता है आपकी इंस्टीट्यूट में कितना दम है। आप, मुझे लगता है, माफ करिएगा मैं मान लो ज्यादा बोलता हूं, आप एक दिव्यांग है लेकिन आप जिस हिसाब से ये पूरा संचालन करते हैं, बहुत शुक्रगुजार हूं। मैं यही प्रार्थना करूंगा भगवान से कि आप देखिए, जो आज के दिन में जिनका आंख है बट वो देखना नहीं चाहते हैं, सही चीज नहीं देखना चाहते हैं, क्या फायदा ऐसे आंख का। भगवत गीता में है, जानीसं सर्वभूतानं तस्य जागृति संयमी। उन लोगों के लिए ये निशा है, रात है, बट आप लोगों के लिए ये उजागर है, आप हमेशा जागृत हैं। तो ऐसे लोग हमें चाहिए, चाहे आंख हो चाहे आंख नहीं हो। हम तो उसी देश से बिलोंग करते हैं जिसका भगवान, जिनका नाम है जगन्नाथ, वो खुद ही एक डिसेबिलिटी का भगवान है। अब आप लोगों की जो डिसेबिलिटी है और उनकी जो डिसेबिलिटी है, मान लो हम कंपेयर करें तो आप तो बहुत ही ऊपर रहेंगे उनसे, लेकिन उनकी जो नाम है जगत का नाथ जगन्नाथ, और उनकी जो कार्यावली है, देखिए हमारी जो सनातन धर्म की जो प्रचेष्टा है, वो प्रचेष्टा यही है, सुबह से उठ के रात तक हम क्या करेंगे वो सारा इसी तरीके से बंधा हुआ है, इसी तरीके से बना हुआ है कि आपको कुछ नहीं करना है। और भगवान जो है वो बोलते हैं कि यार मैं खुद करके दिखा रहा हूं, आप मेरे से देखो और उसको अनुसरण करो। आप किसी को भी जगन्नाथ मंदिर के बारे में थोड़ी सी भी जानकारी हो, मतलब इन टर्म्स ऑफ मटेरियल वर्ल्ड में कहता हूं, वर्ल्ड का सबसे बड़ा ओपन किचन है वो। 1 लाख से ऊपर वहां पे लोग रोज खाना खाते हैं, और उनकी जो किचन है उस किचन में विशेषता देखिए, सारे मसाला वहां पे कूटा जाता है, कोई पाउडर मसाला यूज नहीं हुआ अभी तक, कोई ग्राइंडर मशीन वहां पे यूज नहीं हुआ अभी तक। वो मंदिर हमें अभी यही सिखाता है, भगवान जी हमें वही सिखाते हैं। अरे बच्चा, उसी जमाने में चले जाओ जो संतोष जी अभी कह रहे थे, गुजरे हुए जमाना, उनके बारे में तो मैं जानबूझ के बोला ही नहीं। मैं बोलूंगा, उनके बारे में बोलूंगा तो मैं अपना जो आपने मुझे सेवा दिया है वो मैं कर ही नहीं पाऊंगा। और प्रेमानंद जी उनके बारे में जितने बोले हैं उसका एक कर्ण बोले हैं उन्होंने। तो जो गुजरे हुए जमाने की बात संतोष जी किए हैं, मैं उनका बार बार जिक्र करूंगा, क्योंकि वो बड़े हैं हमसे और उन्हीं से हम सीखे हैं। हम जो भी आज बोल रहे हैं उन्हीं से और उनकी गुरुजी से सीखे हैं हम लोगों ने। तो ये जो जगन्नाथ जी आज जो हमें संदेश देते हैं कि ये जगन्नाथ जी का जो धाम है वो मोक्ष धाम भी है और भोग का भी धाम है। वहां पे जगन्नाथ जी सुबह उठते हैं, बिना म्यूजिक के नहीं उठते हैं। नर्तकी आके डांस करती है तभी वो जगते हैं अपने सैया से। ऐसे है वो भगवान। वो कहते हैं ठीक है, भोग भी करो और मोक्ष प्राप्ति भी करो। मोक्ष प्राप्ति कैसे करेंगे आप देखिए, आज के दिन में मैं कैसे उनकी जो लाइफस्टाइल है, उनकी जो जगन्नाथ की रीति रिवाज है, उसका 2-3 चीजें बताता हूं। जैसे हम लोग ब्रश में मुंह साफ करते हैं, दांत साफ करते हैं, वो लकड़ी यूज करते हैं। और आज के दिन में जो सबसे लेटेस्ट है, ये जो ब्लैक फंगस के बारे में हम लोग बात करते हैं। आज के दिन में मैंने एक डॉक्टर जी से सुना हूं, वो कहते हैं नीम की लकड़ी से आप दंत मंजन करो, हल्दी और नमक लगा के दांत को साफ करो, ब्लैक फंगस से आप बच जाओगे। क्या कह रहे हैं वो, क्या हमें संदेश देना चाह रहे हैं कि उसी जमाने में चले जाओ जो जमाना आप छोड़ के आए थे, ये कह के कि वो पुराना जमाना है, वो गुजरे हुए जमाना है। सुबह उठ के वो कहते हैं कि नाक में पानी पियो, नासा पान, नेति कहते हैं उसको, धोती कहते हैं उसको, जो आज के दिन में योग शास्त्र में बड़ा प्रसिद्ध है। आपको मान लो अपनी नाजाल सिस्टम साफ करनी है, और जो हम लोग अभी करते हैं, और कोरोना के लिए जो रास्ते में जो वायरस जाता है, जिन लोगों ने मेरे कुछ यार दोस्त हैं जिन्होंने अभी भी ये नेति की प्रैक्टिस कर रखे हैं, उन्होंने मुझे बोले हैं ये चीज कि भाई हम नेति कर रहे थे और आज भी कर रहे हैं, हमारी जो सारा पैरामीटर है इतना क्रिटिकल होने के बावजूद
हमें हॉस्पिटलाइजेशन नहीं होना पड़ा। और किसी ने बोला उसकी ऑक्सीजन की कमी हुई थी। हमारी एक उड़ीसा में एक किताब है घर वैद्य लक्ष्मण मिश्रा जी का लिखा हुआ है, उस पे ये लिखा हुआ है कि चावल को भिगा के शरीर में रखते हुए रात को सो जाओ, आपकी ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाएगी। आप आज की अखबार उठा के देखिए, जो ब्लैक फंगस के बारे में बात हो रही है, वो कह रहे हैं ये जो इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन है ये भी एक कारण है ब्लैक फंगस की। आप इमेजिन करिए, आप जाएं तो जाएं कहां। तो आइए उस जमाने में जो सनातन धर्म में लिखा गया है, जो सनातन धर्म का आचरण हमारे भगवान खुद करते हैं, उसी आचरण को मान लो हम आचरित करेंगे। अब देखिए, एकादशी की तिथि है, पूर्णिमा की तिथि है, अमावस की तिथि है। यहाँ पे हमारे शास्त्र में लिखा हुआ है कि एकादशी में थोड़ा लाइट खाना है, पूर्णमासी के तिथि में रात को नहीं खाना है, अमावस में रात को नहीं खाना है। क्यों? हमारे शरीर को भी रेस्ट ही चाहिए। एक तो हम अखाद्य खा रहे हैं आज के दिन में, आप खुद ही सोचिए आप क्या क्या खा रहे हैं, मैं भी उसमें शामिल हूं। तो उसमें भी मान लो ये सनातन धर्म की थोड़ी थोड़ी रीति रिवाज भी मान लो हम लोग मान लें, तो मैं दावा के साथ आज कहता हूं, आज जगन्नाथ जी की जो आचरण है उसको जो भी आचरण करेगा वो बड़े स्वस्थ रहेगा। क्योंकि ये स्वस्थ रहने के लिए हमें कुछ नियम कानून में ही चलना पड़ेगा। उस पे लिखा हुआ है कौन सी महीना में कौन सी सब्जी खाना है, कौन सी सब्जी नहीं खाना है। ये छोटी छोटी चीजें मान लो हम मानेंगे। अच्छा, ये जगन्नाथ जी का जो रीति है वो ऐसा नहीं है कि खाली खान पीने के बारे में है, सोशलाइज कैसे हम होंगे उसके बारे में भी है। आप देखिए, वो जगन्नाथ जी अपने भाई और बहन को लेके चले गए घूमने। जब आते हैं तो धर्मपत्नी ने क्या किए, एक तो जिस गाड़ी में गए थे, जो रथ में गए थे, उसको तोड़ के आ गए गुस्से में और दरवाजा बंद कर दिए, खोले ही नहीं। फिर क्या किए जगन्नाथ जी ने, बड़े प्यार से मनाने के लिए रसगुल्ला लेके आए थे। और उस जमाने की प्रसिद्ध रसगुल्ला जो आज के दिन में भी हमारी गर्व और गौरव है, हमारी उड़िया जाति की गर्व और गौरव है। तो हमारी चाल चलन भी कैसे होगा, हम लोग कैसे समाज में चलेंगे, उसकी भी रीति रिवाज है। ऐसा नहीं कि खाली खान पान में वो व्यवस्था किए हुए हैं। तो मेरा कहने का मतलब यह है, हम मान लो एक नेचुरल फ्लो में चलेंगे, अननेचुरल नहीं होने देंगे अपने आप को, चाहे हम कहीं पे भी रहे। हमारी संतोष भाई अमेरिका गए थे, मुझे पता है, मैं अभी इस पूरी भरी सभा में वो बता नहीं सकता। उन्होंने मुझे एक पुड़िया देके गए थे, उनको याद होगा नहीं होगा मुझे पता नहीं। बोले मैं जिस काम के लिए जा रहा हूं, जो नेचुरल प्रोसेस को मैं वहां पे उज्जीवित करना चाहता हूं, एक अननेचुरल कंट्री में ये चीज वहां पे काम नहीं आएगा, ये आपके पास रखा गया है। और मेरे पास तो खैर इसीलिए रखे थे क्योंकि उनको पता था कि मेरे पास रहेगा तो सुरक्षित रहेगा। वो बात अलग बात है, वो विषय अलग चर्चा है। तो कहने का मतलब ये है, जब हम नेचुरल से अननेचुरल के तरफ जाएंगे। अब देखिए, जब मुझे ये टॉपिक मिला, रोल ऑफ स्पिरिचुअलिटी इन एजुकेशन एंड सोसाइटी, मैं गूगल भाई के पास गया। बोला गूगल भाई स्पिरिचुअलिटी का मतलब क्या है? मुझे गूगल भाई ने बताया, टू रिकवर ओरिजिनल शेप ऑफ ह्यूमन बीइंग इज स्पिरिचुअलिटी। मैं बीइंग ह्यूमन की बात नहीं कर रहा हूं, अर्थ हो सकता है एक तरीका का हो, बट उस बीइंग ह्यूमन में एक चीज छुपा हुआ है कि हमें सुबह 4 बजे जागना है या सुबह 4 बजे सोना है। हमें इसी चीज के ऊपर ध्यान देनी है। मैं अपनी जीवन की एक घटना की बात जिक्र करना चाहूंगा। मैं बॉम्बे जुहू में रहा था एक होटल में, मेरे को 6 बजे की फ्लाइट पकड़नी थी। मैं सुबह 4 बजे आया क्योंकि मुझे एयरपोर्ट पहुंच के फिर बाकी फॉर्मेलिटीज करना था। मैंने देखा, मैं नहा धो के टाई वाई पहन के आया हूं, बाहर इतने लड़के लड़की इस अवस्था में घूम रहे हैं जो सुबह 4 बजे तक सोए ही नहीं थे। तो हम कहां जा रहे हैं, कहां जाना चाहिए? टू रिकवर द ओरिजिनल शेप ऑफ ह्यूमन बीइंग इज स्पिरिचुअलिटी। टू नो हु एम आई एंड व्हाई आई एम हियर इज स्पिरिचुअलिटी। ये गूगल कहता है। तो जैसे हमारी संतोष भाई ने बताया, मैं उसको थोड़ी दूसरे तरीके से बोलना चाहूंगा। तो रिकवर ओरिजिनल शेप ऑफ ह्यूमन बीइंग होता क्या है?
आप देखिए, एक बच्चा पैदा होता है किसी के घर में, हमारी अड़ोस पड़ोस में, हमारी जानकारी में, तो हम लोग पहुंच जाते हैं देखने के लिए। हम लोग क्या पूछते हैं उनके पिताजी, माताजी, दादाजी, दादी जी को? हम पूछते हैं इस बच्चे का नाम क्या है? कोई अभी तक ये पूछा है इस बच्चे का नाम? हम क्या पूछते हैं, हम क्या पूछते हैं, इस बच्चे का नाम क्या रखा है? पहला सवाल जब होता है इस बच्चे का नाम क्या रखा है, कोई ये नहीं पूछता इस बच्चे का नाम क्या है। अच्छा चलो ठीक है, उस बच्चे का नाम सपोज हमने एक्स रख दिया, तो उसी दिन से हमें पता लगा वैसे आंखों वाला, ऐसे कान वाला, ऐसे नाक वाला एक बंदा है और बंदी है, उसका नाम है एक्स। और वही बंदा और बंदी बड़ा होके, बूढ़ा होके एक दिन वो मर गया। जब वही बच्चा और बच्ची, बूढ़ा और बूढ़ी सोया हुआ है डेथ बेड पे, तो हम क्या बोलते हैं कि एक्स मर गया या तो एक्स मर गई। क्या मतलब है इसका? मान लो बॉडी का नाम एक्स है तो बॉडी तो पड़ा हुआ है, फिर मरा कौन है? और मान लो बॉडी का नाम एक्स नहीं था तो किसका नाम एक्स था? तो ये जिसका नाम एक्स था उसका सवाल क्या था कि इसका नाम आपने क्या रखा है। इसका मतलब सवाल यहां आती है उसका ओरिजिनल नाम क्या था, पता नहीं हमें उसका ओरिजिनल नाम क्या था। तो ये जो स्पिरिचुअलिटी है, स्पिरिचुअलिटी का मतलब ये है टू रिकवर द ओरिजिनल शेप ऑफ ह्यूमन बीइंग। उसका मतलब हमें अपने आप को खोजना है, मैं कौन हूं। स्वाध्याय करना पड़ेगा, स्व अध्ययन करना पड़ेगा, वेद वेदांत को अध्ययन करना पड़ेगा अपने आप को ढूंढने के लिए, निकालने के लिए, खोजने के लिए। एक दूसरी मुझे वहां से डेफिनेशन मिला स्पिरिचुअलिटी का, टू नो हु आई एम एंड व्हाई एम आई हियर। इस पे भी वही संतोष जी का मैं उदाहरण दूंगा, योगी जी के बारे में वो बोले थे। तो जब उन्होंने आके पूछे कि तुम कौन हो भाई, उन्होंने बोले मेरा नाम फलाना है। बोले मैं आपको नाम नहीं पूछ रहा हूं, मैं पूछ रहा हूं तुम कौन हो। तो बोले मैं फलाना स्कूल का प्राध्यापक हूं। बोलो ये तो तुम्हारी उपाधि है, ये तो तुम्हारी डेजिग्नेशन है, भाई तुम कौन हो? ना मैं फलाना का बेटा हूं। बोले भाई फिर तुम संबंध की बात पे आ गए, तुम हो कौन? तो उनको नहीं पता था। तो उन्होंने बोले आपकी शरण में मैं आता हूं, मुझे बताइए मैं कौन हूं। तो एक्चुअली हम कौन है ये जानने के लिए हमें गुरुजी के पास जाना पड़ेगा। रामचंद्र जी का भी गुरुजी थे, कृष्णचंद्र जी का भी गुरुजी थे, और उनकी गुरुजी उनको बोल दिए कि देखो राम, तुम यहाँ पे आए हो असुरों को निपात करने के लिए, धर्म की संस्थापना करने के लिए, जाओ आओ मेरे साथ, शिक्षा लो और इसको मारो, इसको मारो, इसको मारो। कृष्ण जी भी यही किए हैं, अर्जुन डांडी उठाओ और मारो, मैं जो बता रहा हूं वही करो, चाहे कैसा भी करना पड़े। कृष्ण जी को गीता समझा के, सारे के सारे अर्थ समझा के उन्होंने बताया और करवाया। तो हम सबको आज के दिन में स्पिरिचुअलिटी के बारे में अधिक जानकारी लेने के लिए सबका गुरु ग्रहण करना पड़ेगा। हर चीज के लिए गुरुजी की आवश्यकता है, तो स्पिरिचुअलिटी के लिए क्यों नहीं है? आप एक छोटी सी चीज आवश्यक करने के लिए, इवन पार्ट टाइम पढ़ने के लिए आप गुरुजी की आश्रय लेते हैं, चाहे फिजिक्स के गुरुजी हो, केमिस्ट्री के हो, मैथ के हो, या तो चाहे चोरी विद्या के भी गुरुजी होते हैं, सरदार जी होते हैं। तो हम एक आध्यात्मिक विद्या के लिए क्यों ना गुरुजी का खोज करें। एक तीसरा डेफिनेशन आया वहां पे कि आपको टू कंपैरिजन बिटवीन ह्यूमन स्पिरिट वर्सेस मटेरियल वर्ल्ड, इसको भी स्पिरिचुअलिटी कहते हैं। तो इसका हम कैसे करें? मतलब ह्यूमन सोल और मटेरियल वर्ल्ड के बीच में एक कंपैरिजन करना और आपको जानकारी लेने को भी स्पिरिचुअलिटी कहते हैं। इसके बारे में मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं, वही जगन्नाथ धाम जी की उदाहरण देना चाहता हूं, राजा इंद्रद्युम्न जी की उदाहरण देना चाहता हूं, जो कि राजा थे, एक प्रदेश का राजा थे, क्या अभाव था उनका। लेकिन जब उन्होंने मंदिर बना दिए, मंदिर बनाने के बाद जब भगवान प्रसन्न हुए और उनको पूछे कि राजा आपको क्या चाहिए,
तो इंद्रद्युम्न जी बोले मुझे कुछ नहीं चाहिए, नहीं नहीं आपको कुछ ना कुछ लेना पड़ेगा, मैं तो आपके ऊपर खुश हूं, मुझे तो वर देना है, आपको आशीर्वाद देना है आपको। तो इंद्रद्युम्न जी बोले अच्छा मान लो आपको आशीर्वाद ही देना है तो आप ये आशीर्वाद दीजिए, मेरे जेनरेशन में, मेरे वंश में कोई ना रहे, ताकि कोई मेरा पुत्र और मेरा पोते ये ना बोल सके कि मेरे पिताजी, मेरे नाना जी ने ये मंदिर बनाए थे। अब देखिए उनकी सोच देखिए, वो खुद अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित थे, इसलिए मटेरियल वर्ल्ड उनको बिगाड़ नहीं पाया था। मंदिर बनाने के भी नाम लेने के लिए वो बात नहीं करते थे। बट भगवान जी तो छोड़ने वाले हैं नहीं, बोले नहीं आपको तो बताना पड़ेगा, आपको कुछ ना कुछ मांगना पड़ेगा। तो फिर उन्होंने बोले अच्छा आपने कब किसको क्या दिया था? आपने एक शुक्राचार्य की आंख लेके उपमन्यु जी को दे दिए, गोपियों की वस्त्र लेके द्रौपदी को दे दिए, इधर से लेते हो उधर से देते हो और दानी बनते हो मेरे सामने। मुझे कुछ नहीं चाहिए भगवान, मेरा बहुत है, मेरे वंश में कोई ना रहे। बट आपको पता है भगवान छोड़ने वाले आदमी नहीं है। जब पूरी जबरदस्ती किए, आप देखिए उन्होंने क्या मांगा। उन्होंने मांगा अच्छा मान लो आपको देना ही है तो मुझे झाड़ू दीजिए, मैं आपका मंदिर मार्जना करता रहूं, मैं आपका मंदिर साफ करता रहूं। और उस झाड़ू की कीमत कुछ दिनों पहले हमारी जमाने में है था, हम बच्चे थे, लेकिन ये संतोष भाई और पटनायक जी इन्होंने देखे होंगे, जब पूरी उड़ीसा सरकार ने जोर लगा दिया कि बिना गजपति महाराज को बुला के रथ यात्रा करने के लिए भगवान 1 इंच भी नहीं हिले। जब इन्होंने आके फिर गजपति जी से माफी मांगा और गजपति जी गए और झाड़ू चलाए रथ में, तब जाके भगवान की चलन हुआ। उससे पहले भगवान हिले ही नहीं थे वहां से। तो ये है झाड़ू की कीमत आज के दिन में। कहने का मतलब ये है अपने आप को उनकी, भगवान की इतनी बड़ी राज्य में एक छोटा सा सेवक मानते हुए। अभी की मैं एग्जांपल देता हूं, एक 93 इयर्स की एक आदमी हॉस्पिटलाइज हुआ था कोविड के केस में, पूरा ठीक ठाक हो गया, उसके बेटों ने आके बिल जमा कर दिए पता नहीं कितने लाखों का, यहाँ पे बता के आपकी मोरल डाउन नहीं करना चाहता हूं। जब वो बाहर निकलने लगे, डिस्चार्ज होने लगे, तो वहां से हॉस्पिटल की स्टाफ बोला सर एक छोटा सा चीज रह गया ना, क्या है ना, 1 दिन का ऑक्सीजन का बिल हमने जोड़ नहीं पाया था और उसकी भी आपको देना पड़ेगा पैसा। तो बेटा तो तब तक गाड़ी में चला गया था, बैठ गया था, पिताजी पीछे पीछे जा रहे थे जो बीमार थे। उन्होंने बोले अच्छा बेटा मुझे बिल दे दो, मैं पे कर देता हूं। तो बिल आया 1 दिन का ऑक्सीजन का 13,000 रुपया। तो वहां पे वो 93 उम्र की जो बुजुर्ग है वो रोने लगे, इतने रोए तो हॉस्पिटल स्टाफ बोले साहब जी माफ करिए, मान लो ऐसी कुछ आपके पास पैसे वैसे की कमी है, आप जाइए हम मैनेज कर लेंगे 13,000 रुपया। बोले बच्चे 13,000 रुपया के लिए मैं नहीं रो रहा हूं, मैं इसीलिए रो रहा हूं 1 दिन की ऑक्सीजन की कीमत मान लो 13,000 रुपया है, मैं ये जो 93 ईयर से जो भगवान से ऑक्सीजन लेके दिया हूं उसका कितना कीमत होगा। मैं तो उनको एक चवन्नी नहीं दिया अभी तक, मैं तो उनको एक ग्रैटिट्यूड तक नहीं दिया। इस चीज को लेके वो हैरान थे। आज के दिन में देखिए वेद क्या कहता है ग्रैटिट्यूड के लिए, हमारी सबकी ग्रैटिट्यूड के लिए वेद में पंच यज्ञ की व्यवस्था है, ऋषि यज्ञ, देव यज्ञ, पितृ यज्ञ, नृ यज्ञ और भूत यज्ञ। हमें ये बड़े संस्कृत वर्ड लगता है कि यज्ञ यज्ञ क्या हो गया यार, हम तो एक एडवांस वर्ल्ड में है। यज्ञ कुछ नहीं होता है, अपने आप को समर्पित करने को यज्ञ कहते हैं। देव यज्ञ जिन्होंने ये सृष्टि रचना किए हैं, जिन्होंने इतने सुंदर सृष्टि दिए है, हवा दिए है, पानी दिए है, मिट्टी दिए है, क्या क्या नहीं दिए हैं। कम से कम सुबह शाम एक धूप अगरबत्ती जला के नमन तो करे प्रभु, कृतज्ञता ज्ञापन कर रहा हूं, इतना तो बोल सकते हैं। उड़िया में, हिंदी में, इंग्लिश में कैसे भी बोले। जिन ऋषि महात्माओं ने ये सारा वेद वेदांत लिख के गए हैं, हमें रोज बताते हैं, रोज सुनाते हैं, और हमारे बुजुर्ग के हिसाब से, हमारे बड़े भाई के हिसाब से, हमारे हर गुरुजन के हिसाब से हमें सिखाते हैं। उनके लिए तो एक ग्रैटिट्यूड है कि मैंने ये सीखा
ये किताब, ये ग्रंथ, ये नहीं होता, ग्रंथ साहब नहीं होता तो हम नहीं सीख पाते कि गुरु गोविंद जी सिंह जी का क्या अवदान है, क्या योगदान है, क्या समर्पण है। तो उनको तो नमन करें, उनके बारे में रोज एक नमन करें। जिन पिता माता ने हमें जीवन दिया है, जिन पिता माता ने अपने को त्याग करते हुए हमारी भलाई के लिए हमेशा सोचे, उनके लिए तो कुछ सोचे, उनको तो एक ग्रेटिट्यूड दें। और नृ यज्ञ, हम लोग सोशल एनिमल है, मैन इज ए सोशल एनिमल, सोशल एलिमेंट। हम लोग समाज में देखते हैं, आज मेरे पास है, किसी के पास नहीं है, मैं उसको सहायता दूं, मैं ऐसा सोचूं कि मेरे को भगवान ने दिए हैं, उसको आज किसी भी कर्म के कारण नहीं मिला है, मैं उसको सहायता करूं। तो इसको नृ यज्ञ कहते हैं, जिनको जो हम सहायता कर सकें। और भूत यज्ञ, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, जितना हो सके। इस धूप के दिन में घर के आंगन में एक छोटी सी टोकरी में पानी रख दो, चिड़िया आके पानी पी लेगा, कहां जाएगा पानी के लिए। तो ये मान लो पंच यज्ञ की व्यवस्था है वेद वेदांत में, मान लो ये हम करते हैं, इसको कहते हैं ग्रैटिट्यूड, इसको कहते हैं समर्पित भाव। करना कुछ नहीं है, इतना भी नहीं कर सकेंगे हम। तो स्पिरिचुअलिटी का मतलब मोटे तौर पे यही है। लेकिन मैं आपको एक बात ये भी बताऊं, ये स्पिरिचुअलिटी में आपके घर में कुछ नहीं बिगड़ेगा। राजा इंद्रद्युम्न ने बोल दिया कि मेरे घर में कोई पैदा ना हो, तो रानी थोड़ी ना छोड़ दिए। जब रानी जी की बारी आया, गुंडीचा रानी जी की, बोले आपको क्या चाहिए? बोले देखो, हर माँ को तो बेटा चाहिए, और मेरे पति तो खुद मांग चुके हैं कि हमारे घर में कोई पैदा ना हो, मेरे पास तो ऑप्शन ही नहीं है अभी, तो आप ही मेरा बेटा बन जाओ। अब बताओ, उन्होंने भगवान को बेटा बना दिया। भगवान उनकी मां के नाम पे मंदिर बना दिया, उनकी मां के नाम पे जो सबसे बड़ा यात्रा है उसको नामित कर दिए गुंडीचा यात्रा। क्या कमी रहा उनके घर में बताइए? क्या उनकी घर संसार नहीं चला? यह हमारी एक वहम है कि हम स्पिरिचुअलिटी के रास्ते में जाएंगे तो हम लोग नहीं बन पाएंगे तरीके से। ये गलत है हमारा। अब एजुकेशन में आते हैं। एजुकेशन है क्या? शिक्षा, जिसमें मन की विकास हो, जिसमें बुद्धि का तीक्ष्णता आती है और जिसमें चरित्र का गठन हो, उसको शिक्षा कहते हैं। तो ये जो मन और बुद्धि की बात किया गया है, आप देखिए, मन बुद्धि चित्त अहंग, ये चार को मिला के समष्टि अंतःकरण कहा जाता है। हम लोग आज के दिन में जो करते हैं, जो सोचते हैं, जो एक्टिविटीज करते हैं, ये शरीर के अंदर ये जो चार चीजें होती है, मन बुद्धि चित्त अहंग, यही सब कराता है। मैं एग्जाम्पल देता हूं आप लोगों को। प्रेमानंद जी ने एक लिंक भेजा और पहले एक पोस्टर भेजे कि हम 23 तारीख को 11 बजे ऐसा एक वेबिनार की इंतजाम कर रहे हैं, आप लोग आइएगा। तो आपने क्या सोचा? हाँ, प्रेमानंद जी बोले हैं, बड़े अच्छे आदमी हैं, अच्छा टॉपिक है और हम लोग योगदान करेंगे। मन में सोच लिया आपने। मन ने ये फाइल बुद्धि को भेजा। बुद्धि एक बताओ जरा, वो प्रेमानंद जी की बुलावे पे जाए ना आ जाए? बुद्धि बोला हाँ जाओ भाई, संडे है, एकादशी है, अच्छा टॉपिक है, चलो चलते हैं। फिर बुद्धि ने क्या किया? चित्त में इसको रिकॉर्ड कर दिया। हाँ, इसको जाना है। जो अहंग है, जो पुरुषाकार है, वो क्या? सुबह उठा, नहा धो के, लैपटॉप मोबाइल सामने रख के, लिंक टाइप करके ऑन करके बैठ गया, सामने आ गया जी में। यही जो मन बुद्धि चित्त अहंग आपको यहां बैठाया हुआ है आज के दिन में, कुछ थोड़ा रिवाइंडिंग करिए। मान लो वही मन सोचता, अरे चलो यार, इतना वेबिनार देखता हूं, एक ना देखूं तो क्या हो गया, अरे संडे है, थोड़ा आराम से सो जाएंगे। अब मन मान लो यही कहता तो आगे आप नहीं बढ़ पाते। तो ये जो मन की विकास है, ये कैसे सही अर्थ में, सही दिशा में इसका विकास हो, उसकी व्यवस्था करना एजुकेशन का असल काम है। इसी में बुद्धि का भी तीक्ष्णता आएगी। अब आया चरित्र का गठन। आज के दिन में जैसे मिस्टर सिंह साहब ने बोले थे कि हम लोग यहाँ पे विद्यार्थी नहीं है, हम लोग अर्थार्थी है। हम लोगों को ऐसे बनाया जा रहा है, हमारी स्कूल और कॉलेज को एक अर्थ उपार्जन का एक फैक्ट्री है, और वहां पे जो जाता है पढ़ने, अर्थ उपार्जन का एक यंत्र बन जाता है। चलो अर्थ उपार्जन करो, कौन मना किया, लेकिन क्या
धर्म की तरीके से अर्थ उपार्जन नहीं हो सकता। ये कहा गया है धर्म अर्थ काम और मोक्ष ये चतुर्वर्ग मनुष्य का चरम पुरुषार्थ है। एक आदर्श मनुष्य होने के लिए, एक सही आइडियल मैन होने के लिए 4 चीजों की जरूरत है। क्या है ये 4 चीजें? धर्म आचरण करते हुए, धर्म मार्ग में रहते हुए अर्थ उपार्जन करो और उसी अर्थ को सही काम में, भगवान जी के काम में, समाज की भलाई के लिए उपयोग करो तो क्या होगा? आपका मोक्ष प्राप्ति होगा। इतना आसान है, इससे आसान कुछ हो सकता है? तो ये जो स्पिरिचुअलिटी है ये एजुकेशन में ऐसे ही कन्वर्ट होगा जब धार्मिक उपाय में अर्थ उपार्जन करते हुए हम लोग अच्छा काम करने की कोशिश करेंगे। मोक्ष प्राप्ति अवश्यम भावी है। तो आज के दिन में चरित्र गठन के लिए मैं आपको बताऊं, अब्दुल कलाम जी ने कितने अच्छे चीज बोले थे कि प्यूरिटी इन हार्ट विल लीड टू ब्यूटी इन कैरेक्टर एंड ब्यूटी इन कैरेक्टर विल लीड टू हार्मोनी इन सोसाइटी, हार्मोनी इन सोसाइटी विल लीड टू order in nation and order in nation will further lead to peace and prosperity in the entire globe, in the entire world। तो कहने का मतलब यह है स्पिरिचुअलिटी का जो रोल है एजुकेशन में, सोसाइटी में बहुत अवश्यम भावी है। हम लोगों की आज के दिन के जो प्रॉब्लम यही है, जब तक गेन विल बी मोर देन पेन हम लोग कुछ नहीं करेंगे। When pain will be more than gain। आज के दिन में देखिए, पिछले लॉकडाउन और इस लॉकडाउन के बारे में आप कंपैरिजन करिए। पिछले लॉकडाउन में हमने इतने मैसेज देखा कि पुलिस ने बहुत लोगों को डिसिप्लिनरी एक्शन लिया, लेकिन इस लॉकडाउन में ऐसा है क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि सबको पता है ये वायरस अभी इतना खतरनाक हो चुका है कि बाहर जाते ही पता नहीं क्या हो जाए। सब अपने अपने घर में सेल्फ डिसिप्लिन, जैसे कहते हैं कि जनता कर्फ्यू लग गया। तो आज के दिन में पेन इज मोर देन गेन, इसीलिए हम लोग थोड़ी थोड़ी रास्ते में आने की कोशिश करते हैं। मैं भगवान जी से प्रार्थना करूंगा हम सबको सद्बुद्धि दे, सत प्रेरणा दे, हम कैसे उनकी बताए हुए राह पे चलते हुए आगे इस समाज में, इस पूरे के पूरे विश्व में हमारी योगदान दें और जिसके लिए उन्होंने हमें इस धरती पे बुलाए हैं उसका सही अर्थ समझकर हम कुछ योगदान दे पाएं। और इसी योगदान में आज के दिन में स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेशल एजुकेशन एंड रिसर्च एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद विजुअल डिसेबिलिटीज, इन्होंने जो योगदान दिए हैं, जो ये कार्यक्रम के आयोजन किए हैं, उनको साधुवाद देते हुए सारे उनकी कमिटी के सदस्यों को और सारे जो भाई और बहन इसको देख रहे हैं, उन्होंने ये सुजोग दिए थे, इसलिए मैं उनकी धन्यवाद करता हूं, उनका शुक्रगुजार रहूंगा। कोई मेरे से गलती हुई है तो माफ करें, और जो भी मैंने बोला है वो भगवान जी का दिया हुआ, हमारे बड़े भाइयों से सीखा हुआ समझकर ग्रहण करें। जय जगन्नाथ, वंदे उत्कल जन। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। इस वर्ड में मैं आपको थैंक्स बोलूं, मेरे पास वर्ड्स नहीं है। जो अभी जो मैसेजेस आ रहे हैं चैट में, जो मैं देख रहा हूं, all these messages reflect the kind of impression you have left in the hearts of all. In fact, what is the value of education if we could not be real men? In fact, indeed, it was impressive. We have been all very much benefited by you. If we could really reflect it in our life, that will be the best. I now request Madam Purnima Sarma ji, the coordinator of NBER, NIEPVD, to please speak on few lines on this. Madam Purnima Sarma ji. थैंक यू सो मच सर। आज के कार्यक्रम के सभी आयोजकों को नमस्कार। श्री संतोष कुमार जी, श्री संग्राम भर जी, डॉक्टर हिमांशु दास सर जी, डॉक्टर जसमेर सिंह सर,
डॉक्टर श्री अंबिका प्रसाद सर, डॉक्टर प्रेमानंद मिश्रा जी, श्रीनिवासन रेड्डी जी, वह सभी कोर्स कोऑर्डिनेटर्स, लेक्चरर्स, टीचर, ट्रेनीज को नमन। और आज एक मंच पर हम सब एकत्रित हुए इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद। रोल और स्पिरिचुअलिटी इन एजुकेशन और सोशल लाइफ विषय पर आयोजित वेबिनार सीरीज 21 में आज हम सभी ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त श्री संतोष मोहंती जी के विचार सुनकर प्रसन्नता महसूस हो रही है। श्री संतोष जी ने निम्न सूक्ष्म पहलुओं पर हमें मार्गदर्शित किया है। शिक्षा के मूल्य रूप इकट्ठा करना नहीं अपितु मानव बनना बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे कि उन्होंने बताया, पैसा यहीं पर रह जाता है। और श्री महापात्रा जी के उदाहरण से हम समझ पाए कि कोविड-19 की सिचुएशन में स्वयं हम कैसे अपने आप को सुरक्षित रखें। भगवान जगन्नाथ जी के जीवन दर्शन का इन्होंने बहुत अच्छे से उदाहरण देकर हमें भगवान की भक्ति और सेवा का महत्व बताया। विदेशों में पढ़कर ज्ञान तो मिलता है, क्या अच्छा मानव बन पाते हैं यह भी समझाया। बहुत से अच्छे उदाहरणों सहित हमें अच्छा ज्ञान दिया। हम अच्छे मानव बनने के लिए सही रास्ता भी दिखाया। मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। श्री संग्राम सर जी ने आज हमें बहुत सुंदर प्रवचन दिए। सबके सुख का मंगल कामना कर और कोविड-19 की सिचुएशन में खुश रहने का मंत्र दिया। मोहिनी एकादशी का महत्व बताया। भगवान के पास रहने का महत्व भी बताया। एग्जाम्पल्स के साथ इन्होंने हमारे मन को बहुत विभोर कर दिया। हम मंत्र मुग्ध हो गए। जैसे ही इन्होंने भागवत गीता का ज्ञान हमें दिया। हमें हमेशा जागृत रहे। भगवान जगन्नाथ जी दिव्यांग जनों के भी भगवान हैं। इनको रोल मॉडल भी इन्होंने बताया। मंदिर से लेकर योग अध्यात्म के साथ कोविड-19 से हम सब अपने जीवन को अच्छे से जी सकते हैं। सनातन धर्म का पालन करें। पूर्णिमा अमावस्या का महत्व बताया जो कि काफी रोचक है। खाने पीने का महत्व बताया। समाज सेवा कैसे हो, कैसे जीना चाहिए, उसका महत्व भी भगवान जगन्नाथ जी के कार्य के द्वारा हमें बताया, जिससे हमने ज्ञान को प्राप्त हुए। निश्चय ही हम सब इसका पालन करेंगे। मैं डॉक्टर हिमांशु दास जी सर जी द्वारा बताए गए विशेष शिक्षा में हम दिव्यांग जनों की सेवा कैसे कर सकते हैं, जिसके लिए उन्होंने हमारा मार्गदर्शित किया। डॉक्टर जसमेर सर जिन्होंने वेबिनार सीरीज को बड़े अच्छे ढंग से ऑब्जेक्टिव्स के साथ बताया, जिससे सभी 110 ट्रेनिंग सेंटर्स के कोर्स कोऑर्डिनेटर्स, ट्रेनीज को हम इसके द्वारा जैसे ऐसे ज्ञान प्राप्त हुआ, उसके लिए मैं डॉक्टर जसमेर सिंह का बहुत धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने हमें बहुत मोटिवेशन दिया। श्री अंबिका प्रसाद जी के आशीर्वाद से हमें नई ऊर्जा मिलती है। डॉक्टर प्रेमानंद मिश्रा जी बहुत अच्छे से कार्यक्रम का संचालन किया और वेबिनार के माध्यम से साइजर और NBER NIPVD का नाम ऊंचा कर दिया। मैं आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग इस पैंडेमिक सिचुएशन में अपने घर पर सुरक्षित रहे। और जैसे कि आज हमारे मोटिवेशनल स्पीकर्स ने हमें बहुत ज्यादा मार्गदर्शन किया और साथ में हम लोगों का स्ट्रेस भी रिलीफ किया। मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद। थैंक यू सो मच मैडम, थैंक यू फॉर योर काइंड वर्ड्स। मैडम ज्यादा बोलते नहीं, वो डेडिकेटेडली वर्क करते हैं, लेकिन आज बहुत ही अच्छा बोले। मैडम को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और जितना धन्यवाद मैसेजेस आ रहा है अभी संग्राम सर जी के नाम में, मैं उनको समर्पित करता हूँ। जी जी, बहुत बहुत सुंदर मिश्रा जी दोनों हमारे मोटिवेशनल स्पीकर्स ने बहुत ही अच्छा हमें आज लेक्चर दिया, जिससे आज हमें बहुत अंदर से भी आत्मा को भी खुशी हुई है कि हमें भगवान की तरफ भी जरूर जाना चाहिए, क्योंकि भगवान ही है जो इस पैंडेमिक सिचुएशन में हमारा साथ दे सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का सभी का। Thank you so much, madam. You are known as a Bhaktivadi also. So I thank you also, madam. And one thing I left out from introduction part of Engineer Sangram Dharji, he is a multifaceted personality. He is a singer. He is a very good eminent speaker. He is an instrumentalist. And he is a good artist also. So I thank him for being with us today.
I now request Sri K. Srinivas Reddy ji to propose vote of thanks along with his speech, own speech on this topic. Sri K. Srinivas Reddy ji from Hyderabad. He is an author also in special education, in the field of special education. Sri K. Srinivas Reddy ji, I welcome for his speech and vote of thanks, please. Namaskar, sir. Very good afternoon to all. First of all, my heartful thanks to Ambika Prasad sir and Dr. Premananda Mishra ji for included me such a wonderful program, sir. My heartful thank you, sir. Myself, Srinivas Reddy. I am working as a lecturer in Teacher Training Center for Visually Handicapped, Hyderabad. I feel honored and privileged an opportunity to propose vote of thanks on behalf of NIEPVD and Sizer Bhubaneswar. I would like to thank our patron, Dr. Himanshu Das sir, Director NIEPVD, honored this webinar with the patron address and with inspirational thoughts on spiritual education, and grace this occasion with your presence, sir. Thank you, sir, for your immense contribution in special education and spiritual education also. I extend great thanks to Dr. Jasmeer Singh, sir, Assistant Professor NIEPVD, for your dedicated work and commitment on education, including spiritual education. Sir said spiritual education is to be build the person on all levels, and also suggested we need to help the children to develop their characters and their minds, and also help them prepare for living successful in this world. Once again, I thank you, sir, for being with us. My heartful thanks to our resource speaker, Sri Santosh Kumar Mahanti ji, President Ekmar Saraswat Sangh, Bhubaneswar, for your wonderful information on spiritual education and how it will be useful for society, particularly for the educational institutions. Sir said, we are teaching everything for the children, but we are not teaching spiritual aspects or spiritual education to children. If we want to teach spiritual values to children, first of all, as a faculty or as a teachers, we should be sound in the spiritual education. Money never makes higher position to the person in the society. Spirituality will keep the best position. Spirituality is essential and eternal in our world. Human being should be pure-hearted. Then only that gives the immense pleasure to us and also for our neighbors and our society. Really, sir, as you said, spirituality helps the children in multiple dimensions, like sense of inner peace, compassion of others, reverence of life, gratitude, application for unity and diversity, ability to transcribe self, capacity of unconditional love. Thank you very much, sir, for spending your valuable time for us and grace this occasion with your presence. A warm thanks goes to Sri Engineer Sangram Darji, Activist International Society for Jagannath Consciousness, New Delhi, for your exceptional information on spiritual education. Sir said about the need to follow the orthodox dharma, that is Sanatana Dharma. It will be useful for our future generation also. Spirituality is useful for our self-learning. Sir said about value of Guru. We inherit spirituality from our Gurus.
So we have to give respect our gurus and show them gratitude. And also explain, without spirituality in education, there is no meaning. It is not useful education, useful for human being, but to become a human being. Sir has suggested that spirituality involves believe in a relationship with some higher power, creative force, divine power, infinity source of energy. It helps us to show love, trust, forgiveness, being respected, dignity, fullness of life, creativity, and connectivity with higher power. My heartful thank you, sir, for spending valuable time with us. And also, my special thanks goes to Purnima Madam, Coordinator NBR, NIEPVD Dehradun, for your valuable words on spirituality and immense spiritual activities constantly. Really, Madam, spirituality discusses the philosophical problems of the person and situational problems also, and the treatment related problems also it will reduce. So everyone should follow the spiritual education. As a teacher, we have to follow, especially as a special educators, we have to teach spiritual education in our institutions. Thank you, Madam, for being here. I would like to extend my sincere thanks to Sri Ambika Prasad Patnaik ji, Deputy Secretary, SSCPD Department, and Course Coordinator, SIZR. Thank you, sir, for your kind concern on education of PWDs and spiritual education, as well as great motivation to conduct such a wonderful webinars in this pandemic situation. I would like to extend my wholehearted thanks once again to Premananda Misra ji, the senior faculty member, and also I can say that great spiritualist. I salute, sir, for your great dedication on your profession as well as spiritual activities. I can say you are the all-rounder. Thank you, sir, for organizing most valuable webinar. And I wish you, sir, to continue more and more webinars like this. Lastly, a very, very big thanks to all the participants from all over the country for your patience and great contribution. Thank you, everyone. Have a great day. Stay home, stay safe. Thank you, sir. Thank you very much for giving this opportunity. Thank you, Reddy ji. Reddy ji, when visited Bhubaneswar, we both went to one temple named Satsikha Mandir at Unit 9 here in Bhubaneswar. I have seen how spiritualistic he is. He was moved by the Odisha culture and spirits, in fact. I now request Sri Ambika Prasad Patnaik, sir, the course coordinator of SIZR, and the Deputy Secretary, sir, for his concluding line and declare end of this webinar. Sri Ambika Prasad Patnaik, sir ji. Yes, sir. Yes, sir. I, on behalf of SIZR, on behalf of our gratitude to the and participants from different institutions and the source persons present, and enlightened us on the relevance of this subject. In the future program, we also expect such type of their contribution, cooperation, and participation to make the webinar series a success one. Shortly, the series will going to organize one experience sharing on online education for children with disability that will be notified to thank you all. Thank you so much, sir. I would also again thank all our respected resource speakers who had a very wonderful, mesmerizing
presentation today, and we have all been submerged in the towering wave they have flown. We are all floating now. So my sincere thanks to respected Santosh Kumar Mohanty ji and Engineer Sangram Dhar ji. We expect still that we will be listening to them in some future programs also again and again. Thank you. Thank you so much. Thank you, Sangram ji and Santosh ji. Thank you, Misra ji. Thank you. Thank you so much, sir. Namaskar, sir.